जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो Audio Jungle. હેલો દોસ્તો, દીપ જર્ની વ્લોગ્સની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે. અને આજે આપણે નવી જર્ની લઈને ફરીથી પાછા આવી ગયા છીએ. આજે આપણે જે જર્ની કરી રહ્યા છીએ તે નાથદ્વારાની અંદર આવેલા નાથદ્વારામાં આવેલું શિવ મૂર્તિ જે સ્ટેચ્યુ છે ત્યાં આપણે અત્યારે આવી ગયા છીએ. આજે આપણે ખાલી શિવ મૂર્તિની અંદર જે લેઝર શો જે થાય છે તે આજે આપણે જોવાના છીએ. તો જોતા રહેજો દીપ જર્ની વ્લોગ્સ. મજા આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું આપણી ચેનલને ભૂલતા નહીં, જેથી નવા નવા વ્લોગ્સ બનાવતો રહું. આપણે પાર્કિંગ સ્લોટમાં આવી ગયા છીએ. પાર્કિંગ અહીંયા આપવાના 50 રૂપિયા આપીને આપણે પાર્કિંગ કરશું અહીંયા ગાડી. અને અહીંયાથી આપણે આગળ જે ટિકિટ કાઉન્ટર છે ત્યાં જઈને આપણે ટિકિટ લેવાની રહેશે. ચાલો આપણે ત્યાં આગળ જઈને જોઈએ. આપણે ટિકિટ લઈ લીધી છે દોસ્તો. આપણી ટિકિટ જે છે તે 200 રૂપીસની આપણે ટિકિટ પડી છે. 200 રૂપિયાની ટિકિટ લીધી છે. ત્યાંથી આપણે ટિકિટ લઈને નીચેની સાઈડ ઉતરવાનું રહેશે ને ઉતરીને આપણે આગળ જશું એટલે એન્ટ્રી ગેટ આવશે. ત્યાંથી આપણે એન્ટ્રી કરવાની છે. આ જે દોસ્તો જે દેખાઈ રહ્યું છે ત્યાંથી આપણી એન્ટ્રી લેવાની રહેશે. અહીંયા 2 ગેટ આવા દ્વાર અલગ અલગ ટાઈપના આવે છે. સાંજે 7 વાગ્યાની આડેગાડે આપણે અહીંયા લેઝર શો જોવા મળે છે. તો દોસ્તો ટિકિટ આવી રીતના સ્કેન કરશે ને પછી આપણે અંદર એન્ટ્રી મળશે એન્ટર થવા માટે. જેવા આપણે અંદર એન્ટર થશું એટલે આવી રીતના રોડથી આપણે કરીબન 1 કિલોમીટર ચાલવાનું રહેશે અને ત્યાંથી આપણે મૂર્તિ દેખાશે. આ એના બધા લોકેશન પોઈન્ટ છે, તેનો મેપ છે. જો ન ખબર પડે તો આ મેપ જોઈને તમે બધું ફરી શકો છો. તો દોસ્તો આપણે થોડા અંદર જશું એટલે તમને આવી શિવલિંગ જોવા મળશે અને તેના ઉપર પાણી ઓલરેડી ચાલુ હોય છે, અભિષેક થતો હોય છે એવું તમને જોવા મળે છે. અહીંયા બહુ સરસ વ્યૂ અહીંયા આવે છે. તમે અહીંયાથી આવો તો તમને જોવાની બહુ મજા આવશે. આ 200 રૂપિયાની અંદર બધું આવી જશે. આ જે સ્ટેચ્યુ તમને દેખાઈ રહ્યું છે તે પવનપુત્ર હનુમાન દાદાનું છે, જે આખું પિત્તળમાં બનાવેલું છે અને બહુ મસ્ત છે. ત્યાંથી થોડાક આપણે આગળની સાઈડ જોશો એટલે તમને મહાદેવનું સ્ટેચ્યુ દેખાશે. અને આ સ્ટેચ્યુ છે તે 351 ફૂટનું સ્ટેચ્યુ છે. વિશ્વનું સૌથી મોટામાં મોટું સ્ટેચ્યુ છે આ જે મહાદેવનું સ્ટેચ્યુ છે તે. અને ત્યાંથી તમે સાઈડની અંદર તમે વ્યૂઝમાં જોશો તો તમને અહીંયા ગણપતિ દાદાની પણ સ્ટેચ્યુ દેખાશે, જે નાનું એવું બનાવ્યું છે પિત્તળમાં. બહુ સરસ છે જોવા માટે. અને દોસ્તો આ જે મહાદેવનું સ્ટેચ્યુ છે ને તે આનાથી મોટું વિશ્વમાં ક્યાંય બન્યું જ નથી. અને આપણે અહીંયા આજે આયા એ જે મહાદેવનું સ્ટેચ્યુ છે ત્યાં આપણે આજે લેઝર શો જોવાના છીએ. લેઝર શો જોવા માટે આપણે અહીંયાથી નીચે ઉતરશું અને તે તમને બતાવું છું કે લેઝર શો કેવો હોય છે અને શું શું હોય છે. દોસ્તો અહીંયા તમને જો ખાવું પીવું હોય તો અહીંયા રેસ્ટોરન્ટ, કેફે બહુ મસ્ત છે. તમે અહીંયા આવીને તમે આનંદ લઈ શકો છો. આપણી પાસે એટલો ટાઈમ નથી એટલે આપણે ખાલી આજે લેઝર શો, આ બ્લોગ્સની અંદર હું તમને ખાલી લેઝર શો બતાવવાનો છું. મારા નેક્સ્ટ વિડીયોઝની અંદર હું તમને આખી જર્ની બતાવીશ કે ત્યાં કઈ કઈ જગ્યાએ ફરવું. અને આ જે દેખાય છે એની અંદર અત્યારે આપણો લેઝર શો થવાનો છે મહાદેવના સ્ટેચ્યુ પર. અને આની અંદર એક મ્યુઝિયમ આર્ટ છે, ત્યાં તમે ઉપર લિફ્ટ દ્વારા તમે જઈ શકો છો. અને બહુ સરસ સુવિધા અહીંયા બનાવેલી છે સાથે. અને આપણે અત્યારે અહીંયા બેસી ગયા છીએ લેઝર શો જોવા માટે. આપણો લેઝર શો થઈ ગયો છે સ્ટાર્ટ. જોતા રહ્યો દીપ જર્ની બ્લોગ્સ. મજા આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આની અંદર આખો ઇતિહાસ બતાવે છે કે આપણે મનુષ્ય કેવી રીતે ઉત્પાદન થયા છીએ, કેવી રીતે બન્યા છીએ. જોતા રહેજો દીપ જર્ની બ્લોગ્સ. ભવાની શંકરૌ વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણૌ યાભ્યામ વિના ન પશ્યન્તિ સિદ્ધઃ સ્વાંતઃ સ્થમીશ્વરમ તુમ ત્રિભુવન ગુરુવૈદ બખાના આન જીવ પાવર કાજાના વિશ્વનાથ મમનાથ પુરારી ત્રિભુવન મહિમા વિદિત તુમ્હારી વિદિત તુમ્હારી વિદિત તુમ્હારી.
बोल रहा हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। मेरा संपूर्ण विश्व में वास है, क्योंकि मैं विश्वास हूँ, विश्वास हूँ, विश्वास हूँ। इस अंतहीन ब्रह्मांड में प्रचंड प्रलय करता एवं प्रलय नियंत्रक मैं ही हूँ। मेरा विज्ञान रूपी विधाता एवं विष्णु इतना विकसित, विस्तृत और व्यापक है, जो कि जीव मात्र की क्रिया, प्रतिक्रिया, विचार, सुविचार, कर्म, सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं इस प्रकाश पुंज में संरक्षित रखता है और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। जन्म का कारण तो माता पिता ही होते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो विधाता रूपी विज्ञान ही देता है। यही है उद्भव, पालन एवं विलय की प्रक्रिया। इस ब्रह्मांड का संचालन मेरा ज्योति स्वरूप लिंग स्वतः ही संचालित करता रहता है। यहाँ एक स्पष्टता आवश्यक है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इस चराचर जगत में व्याप्त जीव मात्र, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या चराचर जगत में किसी का भी प्रतीक हो, अर्थात किसी भी लिंग का जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बचता है वही मुझे परम प्रिय है। यहाँ लिंग का अभिप्राय श्रेणी, वर्ग, वर्ण, विभाग से है, किसी के प्रतीक से है, न कि कोई अंग विशेष। जग जोनि पुनि धरहि शरीरा, तिर्यक योनिया, जलचर, थलचर, नभचर जैसे पशु, पक्षी, कीट, ब्रह्म, मीन आदि आदि योनियों में प्राणी देह धारण करता है। जैसा कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। स्पष्ट है कि योनि अर्थात जीव का एक प्रकार। जगत में शिवलिंग एवं योनि को अंग विशेष के रूप में प्रचारित करना सनातन धर्म को प्रदूषित करने की कुचेष्टा है। शिवलिंग एक ज्योति का स्वरूप है। आज भी शिव के 12 स्थान ऐसे हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यह है शिवलिंग, और अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई वो सारी योनियां हैं। यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया, ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियां दूर हों। शिव में विश्वास, उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव के प्रकाश पुंज की संज्ञा है। अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है। एक चिन्ह है।
एक प्रतीक है। ये है शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर। शिव है द्वार, एक भीतरी प्रवेश के लिए यह है प्रतीक। इस स्पष्टता के उपरांत भी भ्रामक अर्थ प्रचारित करना उचित नहीं है। पालन और संहार हो रहा था, अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ। किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में प्राणियों में सत्य प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर
भयंकर तांडव करने लगी। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था, हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और उस समय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए मानो अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए भयंकर डमरू नाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्र नाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है। और वो डमरू इस प्रकार बोला, ऐं ऋ ऐं ऐं भयवरट लन यमगणनम जभय गणदश जब गणदश खपचटत चटतव कपय शशशर हल। ऐं ऋ ऐं ऐं छय वरट लन यम गण नम जभय गणदश जब गणदश खपचटत चटतव कपय शशशर हल। यह था शिव का नाद शस्त्र से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार ये 14 शिव सूत्र परमात्मा शिव ने जगत को दिए, वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ लण मध्य तत्संज्ञकः। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा, संधि, ओष्ठ, जिह्वा, कंठ, नासिका, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी
वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के निनाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। न त्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है।